जी, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं इंग्लिश इजी ट्रिक्स विद मोहम्मद शुएब। तो ये चैप्टर हमने इसकी रीडिंग और उर्दू ट्रांसलेशन कर ली थी। आगे ज़रा आज इसकी एक्सरसाइज पे चलते हैं। वहाँ उस वीडियो में मैंने बता तो दिया था, लेकिन ये जो यहाँ पे थीम लिखे हुए हैं ये मेरे ख्याल में मिसप्लेस हुए हैं, किसी और चैप्टर में है। हाँ, ये शायद चैप्टर 8 में है, ईगल वाली पोएम में। तो इसके थीम ये मैंने उधर बता दिए हुए हैं वीडियो में। ठीक है, तो हम सीधा चलते हैं एक्सरसाइज की तरफ। जी, तो सबसे पहले हम देखते हैं वर्मन किसको कहते हैं। इंसेक्ट को या वार्म को कहते हैं। आर्मर लाइक मतलब प्रोटेक्टेड और गार्डेड। पिटीफुली काइंडली और मर्सीली। स्ट्रेनियस किसे कहते हैं, एनर्जेटिकली। फ्रेटसा शार्प कटर को बोलते हैं, तेज कोई काटने वाली चीज़। इनकम्प्रिहेंसिबल अनअंडरस्टैंडेबल। डिस्कर्टसी किसको कहते हैं, डिसरिस्पेक्ट को कहते हैं। कंसीड किसको कहते हैं, एक्सेप्ट। फ्रेंजी किसको कहते हैं, एंथुजियाज्म को कहते हैं। इंसिस्टेंट किसको कहते हैं, कंटिन्यूअस और डिमांड को कहते हैं। उसके बाद हम देखते हैं ज़रा इसके क्वेश्चन हैं, प्री रीडिंग क्वेश्चंस हैं। ठीक है, जो उसने पूछे हुए हैं। What do you think the story might be about based on the initial passage? After reading the initial passage, I think the story is about some great change and its title sounds like that. ठीक है, तो ये हर किसी का अपना आंसर हो सकता है, आप पे अपना डिपेंड करता है कि आप इस पे क्या लिखते हैं। ठीक है, मुझे ये लगा तो मैंने ये लिख दिया। और what do you expect the tone of the story to be based on opening? I expect that the tone of the story will be a great change and the revolutionary and alteration in something. ठीक है, पहले पहले ऐसे ही लगता है कि जैसे कोई डरावना कोई रेवोल्यूशन या कोई चेंज आ रहा है। अब ये वाइल्ड रीडिंग क्वेश्चंस हैं कुछ। हाउ डज द ग्रीगर रिएक्ट टू हिज ट्रांसफॉर्मेशन? ग्रीगर इज शॉक्ड, disbelieving and frightened by the transformation into a giant insect like creature. He struggles to come to terms with the new physical form and its limitations. Initially, he tries to adapt and find ways to navigate his new body, but eventually, he becomes resigned and isolated. ठीक है, वो जब देखता है कि उसकी बॉडी चेंज हो चुकी है तो वो कोशिश करता है कि वो अपने बेड से उठे, लेकिन वो नहीं उठ सकता। What is the main character's thought and feelings as he grapples with new condition? Krieger's experiences, confusion and disorientation, fear and anxiety about his future, guilt and responsibility towards his family, frustration and anger due to the inability to communicate, sadness and loneliness resulting from his isolation, acceptance and resignation, he adjusts to his new reality. उसके बाद देखें, how does Grigor's family react to his absence from the work? The Grigor's family is initially concerned and confused by his absence. They try to communicate with him through his locked door, send the chief clerk to investigate, become increasingly frustrated and resentful on the Grigor's absence, affect their financial stability. ये सारी चीज़ें वो जो करते हैं ये वही है। Eventually, they view Grigor as the burden and liability. उसके बाद देखें, what is the chief clerk's role in the story and how does he view Grigor's behavior? The chief clerk represents the Grigor's workplace and social expectations. It is skeptical and dismissive of the Grigor's excuse. ठीक है, वो उसके एक्सक्यूज पे जो बात करता है, अगर आपने वो पहले वाली वीडियो देख ली है। Views Grigor's transformation as unacceptable and unprofessional. ठीक है, कि उसका इतना चेंज होना ये इस तरह देखता है। Sees Grigor as a liability and threat to the company's reputation, और वो कहता है कि तुम इस तरह से सुस्त काम करते रहे तो कंपनी का ये होगा। How does Grigor's attempt to communicate with his family? Grigor tries to communicate through the verbal attempts, initially unsuccessful due to his changed vibes. ठीक है, written notes। रिटन नोट्स ये जब आप पूरा नावल पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये किस तरह होता है, लेकिन यहाँ पे मेंशन नहीं है तो इसको मैं ख़त्म कर देता हूँ। जेस्चर्स एंड मूवमेंट्स ये भी आप पूरा, क्योंकि ये पूरा नहीं है, ये उस पेज पे आंसर लिखे हुए हैं। ठीक है, वो बात करने की कोशिश करता है, इमोशनल एक्सप्रेशंस वगैरह वो सारा हम पढ़ चुके हैं।
तो पोस्ट रीडिंग क्वेश्चंस पे आते हैं। व्हाट डू यू थिंक इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द ग्रीगस ट्रांसफॉर्मेशन इनटू अ हॉरिबल वुमन? Krieger's transformation symbolizes his loss of identity, alienation, and the inner turmoil, mirroring the dehumanizing effect on the modern society. ठीक है कि किस तरह से इंसान चेंज होता है और किस तरह से सोसाइटीज इस तरह डिह्यूमन होती हैं। How does Grieger's family attitude towards him change throughout the story? Grieger's family shifts from concerns and sympathy to the frustration, resentments, and eventual indifference, revealing the fragility of the familial bonds. ठीक है कि इस तरह से वो करते हैं कि उनको लगता है कि सारा कुछ अब खत्म हो गया क्योंकि कमाने वाला वही होता है। ठीक है। What themes or ideas do you think the story explores? The story explores identity crisis, social isolation, family dynamics, absurdity कहते हैं meaningless चीज को, and human nature, darker aspect, critiquing societal pressure and conformity. How does the story use Grieger's transformation to comment on society or human nature? Grieger's transformation serves as a metaphor for the social dehumanization, highlighting the exploitation, fear, and indifference that arise when the individual fail to conform to the expectation. आपको पता ही है, हमने पहले भी पढ़ा था, क्या कहा जाता है कि सक्सेस हैज़ मैनी फादर एंड फेलियर इज़ एन आर्फन। जब आप कामयाब हो जाते हैं तो सारे लोग आपके रिश्तेदार बन जाते हैं, और जब आप नाकाम हो जाते हैं तो बस कोई आपका नहीं होता। अब ये एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं। रीडिंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग। ठीक है। What physical challenges does Grieger faces as a result of his transformation? Grieger struggles with the mobility, balance, and communication due to his new insect-like body, experiencing difficulties walking, standing, and articulating words. तो मेरे ख्याल में इसमें कोई एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत नहीं है। What does Grieger hesitate? Why does Grieger hesitate to open the door for the chief clerk? The Grieger hesitates due to fear of revealing his transformed state, shame, and anxiety about the chief clerk's reaction. How does Grieger justify his absence from his work to chief clerk? Grieger claims he is ill but struggles to articulate his situation, leading to the confusion and skepticism from the chief clerk. 4. How does Grieger family member react to his transformation? Grieger's family react with the shock, horror, disgust, and eventually resentment and indifference, illustrating the fragility of the familial bonds. ठीक है, ये सारी चीज़ें हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। What do you think the story might be trying to convey about the human condition or society? The story highlights the societal pressure, conformity, alienation, and the dehumanization effect of the modern life, suggesting humans are reduced और मोर फंक्शनैलिटी एंड एक्सप्लॉयटेड फॉर द यूटिलिटी, कि इंसान को कैसे अपने काम के लिए यूज़ किया जाता है। ये बिजनेस माफिया को पता ही नहीं होता कि गरीबों के साथ क्या क्या हो रहा है। व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ द मेन कैरेक्टर ग्रीगर सैम्सा वॉकिंग अप ट्रांसफॉर्म? Grieger's transformation symbolizes the disintegration of the identity, illustrating how societal expectations, family dynamics, and internal struggles can lead to the feelings of alienation, isolation, and loss of humanity. कि किस तरह से जब आप सिर्फ काम तक रहते हैं, आपको अपनी फैमिली का वक्त नहीं होता, आपको अपना आपको देने के लिए वक्त ना हो, तो इंसान बहुत फ्रस्ट्रेट हो जाता है, वो दुनिया से अलग होना चाहता है, फिर आइसोलेशन में चला जाता है। तो ये देखते हैं ज़रा हम। डिड्यूस द मीनिंग ऑफ द डिफ़िकल्ट वर्ड्स। हाँ, तो डिड्यूस ये हमने पहले भी कई चैप्टर्स में किए हुए हैं। ठीक है, डिड्यूस क्या होता है? जो कंटेक्चुअल मीनिंग होते हैं कि किस कॉन्टेक्स्ट में वो वर्ड यूज़ किया गया है। वैसे तो उसका कुछ और मीनिंग हो सकता है, लेकिन वो जो यूज़ किया गया है उसका क्या मतलब है। एक्विजिशन क्या है? अब इसके डिड्यूस्ड मीनिंग क्या है? फेलियर टू फुलफिल द रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये हमने उसमें पहले पढ़ा है। लेकिन इसका डिक्शनरी मीनिंग क्या होता है? कुमिट अ क्राइम। ठीक है, जुर्म करना। सप्रेस का क्या मतलब होता है? यहाँ पे इसका मतलब ऐसे यूज़ हुआ है जब वो कहता है टेंशन और कन्फ्लिक्ट, लेकिन इसका वैसे मतलब क्या होता है? टू स्टॉप और रिस्ट्रेन। स्वैंग का मतलब है टू सस्पेंड इन द एयर, लेकिन यहाँ डिक्शनरी मीनिंग इसका क्या है? मूविंग नॉट स्ट्रेट। अबेंडन, इनएबिलिटी टू कंट्रीब्यूट।
ठीक है। अबेंडन का यहाँ चैप्टर में कैसे यूज़ हुआ है, इनएबिलिटी टू कंट्रीब्यूट, जब कोई काम ना कर सके, लेकिन इसका वैसे डिक्शनरी मीनिंग होता है टू लीव और डेजर्ट, खाली कर देना, छोड़ देना। डोम्ड का वैसे यहाँ पे मतलब कैसे यूज़ हुआ है, कर्व्ड लाइक इंसेक्ट, ठीक है, लेकिन इसका डिक्शनरी मीनिंग क्या होता है, नॉट स्ट्रेट, जो भी कुछ चीज़ सीधी ना हो। नॉनसेंसिकल, यहाँ पे इसका मतलब क्या होगा, एब्सर्ड होगा इसका मतलब। वैसे इसका मतलब क्या होता है, लैकिंग सेंस और मीनिंग, ठीक है। तो ये रीडिंग और ये हम पहले कर चुके हैं इसी वीडियो में। अब ये मोज़म्बिक के बारे में है कि मोज़म्बिक एक ऐसा कंट्री है जिसमें जिसकी पॉपुलेशन बहुत हाई तरीके से, बहुत ही तेज़ी से बढ़ रही है, ठीक है। और उसको डिमांड किस चीज़ की, नेचुरल रिसोर्सेज की डिमांड है, और उसका क्लाइमेट चेंज हो रहा है, और वो ग्रीन इकानमी पे काम कर रहे हैं, ठीक है। क्योंकि जब आपकी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ रही होती है तो उसके मसाइल भी बहुत ज़्यादा होते हैं, ठीक है। ये जो चीज़ें मैंने हाईलाइट की हुई हैं, सिर्फ मैं ये आपको बता रहा हूँ ताकि वीडियो ज़्यादा लेंथी ना हो जाए। तो जाहिर सी बात है, जब आपकी पॉपुलेशन बढ़ जाए तो हर चीज़, इकोलॉजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर पे भी आपको काम करना होता है, ठीक है। और इसी तरह फिर आगे देखते हैं हम। ये मोज़म्बिक पे इसने आर्टिकल दिया हुआ है, ठीक है। जिसको पसंद ना आए वो वीडियो आगे आगे कर दें काइंडली, क्योंकि कुछ फिर व्यूअर्स के कमेंट आते हैं कि एक्सप्लेन कर दिया करें, ठीक है। अब ये मोज़म्बिक पे पहले इसने ये आर्टिकल एक दिया है कि फास्टेस्ट ग्रोइंग कंट्रीज, कि इसकी पॉपुलेशन बढ़ रही है और इतना बढ़ गई है कि पिछले 20 सालों में डबल हुई है, ठीक है। तो ये मैंने हाईलाइट किए हुए हैं, सेम वही चीज़ आपको बता रहा हूँ जो लिखी हुई है, ठीक है। और उनकी डिमांडें किस किस चीज़ की बढ़ गई हैं, प्रोडक्ट और मटेरियल की बढ़ गई हैं, क्योंकि उनकी आबादी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। और फिर वो करते क्या हैं, फ़िश फ्रॉम द ओशियन पीपल टू ईट, ठीक है, कि या तो वो मछली वगैरह खाते हैं, या फिर उनका काम है टिम्बर फ्रॉम द मैंग्रोव्स, या तो फिर वो लकड़ी बेचते हैं, या फिर रिवर से वाटर फ्रॉम द रिवर इरिगेशन, इसी से वो अपनी वो सारी फसलें वगैरह उगाते हैं। और फिर उनके पास बिजनेस का कोई वो नहीं है, बिजनेस अगर है भी तो किस चीज़ का है, आगे देखते हैं हम, ठीक है। उनके पास फिर बिजनेस हमेशा किस चीज़ पे डिपेंड करता है, हेल्थी हेल्दी इन्वायरमेंट पे डिपेंड करता है। अगर बंदों की सेहत ही ठीक ना हो तो बिजनेस क्या खाक होगा, ठीक है। इसलिए स्पेशली गिवन एट मैनी रिसोर्सेज, फिर उनको रिसोर्सेज की ज़रूरत है जिसके लिए वो अनसस्टेनेबल हो रहे हैं, ठीक है। सो डज द डेवलपमेंट ऑफ रोड, ठीक है, उनको इनकी डेवलपमेंट ऑफ रोड्स की ज़रूरत है। उनके पास क्लाइमेट चेंज हो रहा है, उनके दरिया खुश्क हो रहे हैं, रिवर्स आर गेटिंग ड्राई, फॉरेस्ट आर डिग्रेडेड, ठीक है, उनके जंगलात भी ख़त्म हो रहे हैं, ओशंस आर पॉल्यूटेड, समंदर उनके बहुत ज़्यादा आलूदा हो चुके हैं, और उनकी कंट्री की इकानमी, पैसा, जाहिर सी बात है वो भी बहुत ख़त्म हो रही है। फूड सप्लाई, जब आपके पास पैसा ना हो तो फूड सप्लाई भी नहीं आती बाकी मुल्कों से, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें उनकी एट अ रिस्क हैं। द सल्यूशन अब कुछ बताए हुए हैं कि किस तरह से करना चाहिए, कि जो बैंक हैं, अफ्रीकन डेवलपमेंट बैंक है या जो भी वर्ल्ड बैंक्स हैं, उनको उनकी इमदाद करनी चाहिए ताकि उनमें बायोडाइवर्सिटी आए। बायोडाइवर्सिटी कैसे आती है, जब पैसा आता है तो लोग बिज़नेस के लिए आते हैं, डिफरेंट कल्चर के लोग आते हैं, तो बायोडाइवर्सिटी बन जाती है, ठीक है। तो कहता है 5 ईयर स्ट्रेटजी बनानी चाहिए जिसमें सस्टेनेबल मैनेजमेंट होनी चाहिए, ठीक है, ताकि वो अपने कैपिटल को बचा सकें। और सिंपलिसिटी, तो नेचुरल कैपिटल, ठीक है, स्टॉक ऑफ द रिसोर्सेज, लैंड, वाटर, ठीक है, ये सारी चीज़ें होंगी तो कोई मुल्क खुशहाल हो जाता है, ठीक है। वाइल्ड लाइफ, फर्स्ट सच प्रोग्राम इन अफ्रीका, तो ये अफ्रीका में कहता है पहला ऐसा प्रोग्राम होगा, ठीक है, जिसकी द फाउंडेशन प्रोग्राम विल बी ए नेशनल लेवल। अगर इस तरह का प्रोग्राम शुरू किया जाए तो नेशनल लेवल पे ये पहला प्रोग्राम होगा। असेसमेंट ऑफ द कंट्री, प्लांट एंड एनिमल्स, पौधे उगाए जाएं, जानवर लाए जाएं, क्लाइमेट सिनेरियोज ऑटोमेटिक चेंज हो जाएंगे, एक्सपेक्टेड टू बी कम्प्लीटेड इन, तो देखें ये पाकिस्तान की हालत है, पुराना आर्टिकल ने उठा दिया है कि एक्सपेक्टेड टू बी 2019, ठीक है, कि 2019 तक ये ठीक हो जाए, ठीक है। उसके बाद देखें द टाइम इज़ नाउ, नीड इज़ अर्जेंट, जाहिर सी बात है ऐसी चीज़ों के लिए अर्जेंट ही ज़रूरत होती है। सेवन्थ पॉरेस्ट कंट्री है मोज़म्बिक दुनिया में, ग्रोइंग एक्सपोनेंशली, बहुत हद से बढ़ रहा है। और सबसे बड़ा इसका मसला क्या है, इसमें फ्लड्स बहुत ज़्यादा आते हैं, वाइल्ड फायर, जंगलात में आग लग जाती है, लैंड स्लाइडिंग्स होती है, ड्राफ्ट है, कहत साली आ जाती है। और इसके 70% लोग क्या करते हैं, रिलाइज ऑन द नेचुरल रिसोर्सेज, जो नेचुरल
रिसोर्सेज हैं उन्हीं पे डिपेंड करते हैं। और वो नेचुरल रिसोर्सेज क्या है? क्रॉप्स आर द रेज ऑफ द लाइफ स्टॉक्स, ठीक है, या तो फसलें हैं या फिर लाइफ स्टॉक है या फिर वो मछलियाँ पकड़ते हैं, ठीक है। और देखें, देयर आर द लार्ज सोर्सेज एनर्जी फॉर द पीपल मोजम्बिक एज दे आर यूज टू क्रिएट चारकोल, ठीक है, दैट इज यूज्ड। अब देखें 85% लोग जो हैं कंट्री, ये किस पे? चारकोल पे डिपेंड करती है। और 90% ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कंट्री इज जनरेटेड बाय द हाइड्रो पावर। और 90% बिजली इनकी पानी से बनाई जाती है। तो फॉरेस्ट किस लिए काम आते हैं? आप में से जो लोग इस्लामाबाद में रहते हैं मोस्टली आप देख लें, कभी भी हब्स वगैरह हो जाए तो अगले 1-2 दिन में बारिश हो जाती है। वो क्यों है? क्योंकि आर्टिफिशियल प्लांटेशन की हुई है मार्गला हिल्स पे और पूरे इस्लामाबाद में दरख्त हैं उसकी वजह से। तो इसलिए कहा जाता है कि जितने ज़्यादा दरख्त उगाएंगे ऑक्सीजन लेवल बराबर होगा तो क्लाइमेट चेंज आएगा। तो मिटिगेटिंग क्लाइमेट चेंज, तो जाहिर सी बात है वो भी अगर पौधे लगाएंगे तो उनमें भी ये चेंज आ जाएगा। तो ये डिबेट है, ये आपको क्लास में टीचर करवा देंगे। एक्सरसाइज ग्रामर है, ठीक है, ये देखें ज़रा, इसमें आइडेंटिफाई एंड करेक्ट द ग्रामर वोकेबलरी एरर्स इन द पैसेज। द सन इज, ये इसकी ये फार्म शाइन नहीं होती, इसकी फार्म ये होती है जो ऊपर लिखी हुई है, शोन ब्राइटली। एंड द बर्ड्स वर, बर्ड्स प्लूरल आ गया है तो वर आएगा। सिंगिंग मैरिली, खुशी से, मैरिली का मतलब होता है प्लीज। सारा गोज टू द पार्क येस्टरडे, येस्टरडे आ गया है तो वेंट आएगा, ठीक है। बट शी हैड नॉट हैव फन, ठीक है, हैड आएगा क्योंकि पास्ट की बात आ रही है। बिकॉज द रेन स्टार्टेड, जब माजी की बात हो रही है तो स्टार्टेड pouring sternly। इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर ऑल स्टूडेंट्स टू स्टडी हार्ड एंड दे विल सक्सीड, सक्सेस नहीं आएगा, सक्सीड आएगा। सक्सेस नाउन है, सक्सीड वर्ब है। अब ये देखें, ये आगे बता रहा है कि इस तरह से सेंटेंस को आपने एक कर देना है जोड़ के। द सन इज शोन ब्राइटली एंड द बर्ड्स वर सिंगिंग मैरिली। अब इसको हमने एक करके लिख देना है। ये इंस्ट्रक्शन ऊपर दी हुई है, ठीक है। आइडेंटिफाई द करेक्ट ग्रामर। अब ये देखें, इसने इधर बताया हुआ है कि किस में क्या क्या नाउन वर्ब, तो हमने भी यही बताना है। द बिग, द क्या है? आर्टिकल है। बिग क्या है? बिग हमारे पास एडजेक्टिव है, ठीक है। बिग हमारे पास एडजेक्टिव है। बिग हमारे पास एडजेक्टिव है। ब्राउन भी एडजेक्टिव है। डॉग हमारे पास नाउन है। बार्क वर्ब है। लाउडली एडवर्ब है। इन प्रीपोजिशन है। द फिर आर्टिकल। आल्दो देखें कंजंक्शन है। टायर्ड वर्ब है। सारा नाउन है। कंटिन्यूड वर्ब है। वर्किंग यहाँ पे जेरेंट भी हो सकता है, पार्टिसिपल भी हो सकता है, ठीक है। तो मेरे ख्याल में तो ये मोस्ट प्रोबेबली जेरेंट है ये। डेलीजेंटली एडवर्ब है। इसी तरह द जो है आर्टिकल है। सन नाउन है। सेट्स वर्ब है। स्लोली एडवर्ब है। बिहाइंड प्रीपोजिशन है। द आर्टिकल है। माउंटेन्स नाउन है। अब वाव क्या है? इंटरजेक्शन है। व्हाट क्या है? प्रोनाउन है। आ क्या है? आर्टिकल है। ब्यूटीफुल एडजेक्टिव है। सनसेट नाउन है, ठीक है। टेंस एग्रीमेंट यहाँ पे बताने हैं हमने, ठीक है। तो ये फर्स्ट सेंटेंस मुझे समझ नहीं आया, जो भी देख रहे हैं ज़रा कमेंट में मुझे भी गाइड कर दीजिएगा, क्योंकि ये फ्यूचर और पास्ट इसने मिक्स करके लिख दिया है और अनफॉर्चुनेटली यही सेंटेंस रिपीट भी 2 दफ़ा हुआ। शी विल फिनिश हर होमवर्क टुमारो आएगा क्योंकि विल आया हुआ है तो यस्टरडे नहीं आ सकता। दे हैव बीन स्टडिंग फॉर द एग्ज़ाम फॉर 3 आवर्स आएगा, सेंस नहीं आता, ठीक है, डिटरमिनेंट टाइम नहीं है ये। तो शी विल गो, ये वही दोबारा रिपीट हुआ है सेंटेंस। बाय द टाइम ही अराइव्ड द पार्टी ऑलरेडी हैड एंडेड, ठीक है। बाय द टाइम ही अराइव्ड, यहाँ पे पास्ट आया हुआ है तो पास्ट हमेशा पास्ट से ही फॉलो किया जाता है तो हैड एंडेड आएगा। आई एम वाचिंग अ मूवी वाइल ही इज़, हाँ, अगर वाइल आ जाए तो पहले जो है यहाँ पे भी वाइल के बाद भी कंटिन्यूटी शो करानी होती है, ठीक है। तो इज़ रीडिंग आएगा। दे हैड फिनिश देयर होमवर्क बिफोर डिनर एंड दे प्लेड आउटसाइड, ठीक है। दे प्लेड, क्योंकि यहाँ पे फिनिश्ड आ गया है तो पास्ट पास्ट से ही फॉलो होता है तो प्ले नहीं आएगा, दे
प्लेड आएगा। ओके, उसके बाद नेक्स्ट वीक वी विल हैव कंप्लीटेड। ये सेंटेंस भी मेरी समझ से बाहर है, या तो इसमें कोई मिस्टेक है या फिर मेरी समझ में नहीं आ रहा, ये भी कमेंट में आपने बताना है। अब ये यहाँ पे सेंटेंस कंबाइन करने हैं, ठीक है। पेयर ऑफ सेंटेंसेस फॉर ईच पेयर, कंबाइन टू सेंटेंसेस इनटू वन कम्प्लेक्स, ठीक है। कम्प्लेक्स आ गया है तो इसका मतलब है सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन लगाने हैं, कोऑर्डिनेटिंग नहीं लगाने। मैरी लव्स पेंटिंग, मेरी लव्स पेंटिंग, और सेंटेंस भी क्या है, शी फाइंड्स इट रिलैक्सिंग। तो हमने क्या कर दिया, मैरी लव पेंटिंग बिकॉज शी फाइंड्स इट रिलैक्सिंग। तो उसके बाद है शी लव्स प्लेइंग द पियानो, शी प्रैक्टिस एवरी डे। शी लव्स पियानो एंड केस प्रैक्टिस एवरी डे, ठीक है। वही चीज़, कोई भी कोऑर्डिनेट कंजंक्शन नहीं लगाना, सब ऑर्डिनेट ही लगाना है। और उस कोऑर्डिनेट में आपको बता चुका हूँ, फैन बॉयज़ होते हैं। द मूवी वॉज एक्साइटिंग ऑल दो इट केप्ट अस ऑन द एज ऑफ आवर सीट्स, ठीक है। इसके बाद देखें, इसको मैंने किया है, जॉन इज टैलेंटेड राइटर देयर फॉर हिज स्टोरीज आर कैप्टिवेटिंग। अब देखें, माई डॉग बार्क्स लाउडली अनलेस ही गेट्स एक्साइटेड व्हेन विजिटर्स अराइव। अब ये मैंने अनलेस लगा दिया है, आप यहाँ पे एज भी लगा सकते हैं, ठीक है, कोई भी आपने लगा देना है। उसके बाद है ये वोकेबलरी है, इसमें इसने कहा है कि आप जो भी वर्ड चूज़ करें उसकी वजह बतानी है कि क्यों चूज़ किया है। अब देखें, द डॉग चेज द मेल मैन अवे, ठीक है। द डॉग, द अग्रेसिव डॉग चेज द मेल मैन अवे आएगा, क्यों, प्लेफुल। अब कौन सा ऐसा कुत्ता होता है जो किसी मुसाफिर को खेलते खेलते आगे ले जाए। अब स्लीपी भी यहाँ नहीं आता, ठीक है। और इसी तरह टाइनी भी नहीं आता, तो अग्रेसिव ही आता है, कुत्ता गुस्से में ही किसी के पीछे भागता है। द माउंटेन पीक सीम टू बी टच द स्काई, द टावरिंग माउंटेन आएगा, क्योंकि टावर भी बुलंदी को शो करता है। अब डिलीशियस देखें, मज़ेदार, कलरफुल, रनिंग, यहाँ पर कोई और वर्ड सूट नहीं कर रहा। द डिटेक्टिव केयरफुली एग्जामिन द सस्पेक्ट एविडेंस टू सॉल्व द, तो यहाँ पे सस्पेक्ट आएगा। डिटेक्टिव होते हैं जो खोज लगाने वाले या तलाशी करने वाले होते हैं। अब यहाँ टेस्टी भी नहीं आ सकता, टायर्ड, जिगेंटिक, ये तीनों यहाँ पे नहीं आ सकते। His speech was filled with heartfelt and inspirational words, ठीक है, move to the audience। अब मंडेन, मंडेन यहाँ पे एक तो रिपीट हुआ है, तो filled with artistic and inspirational word, तो यहाँ पे artistic भी आ सकता है, ठीक है। heartfelt वर्ड भी आ सकता है, artistic भी आ सकता है। She gazed at stars in the night sky, ठीक है, ट्विंकलिंग स्टार्स। अब ना तो देखें स्नीजिंग आया हुआ है, ना तो सितारे छींकते हैं, ना हॉपिंग, ना इधर उधर फुदकते हैं, और ना ही साल्टी, ये बिल्कुल नहीं लग रहा है। तो द मेलोडी ऑफ द पियानो पीस ब्रॉट द टीयर्स इन हर आइज, तो डांसिंग मेलोडी, ठीक है। तो डांसिंग मेलोडी, मेलोडी मीठी आवाज़ को कहते हैं जो भी। अब हांटिंग खौफनाक होती है, क्रंची होता है, या स्लीपी, ये दोनों, ये भी यहाँ पे सही नहीं लग रहा है। द शेफ एडेड अ पिंच ऑफ सॉल्ट टू इनहेंस द फ्लेवर ऑफ द डिश, ठीक है, चुटकी भर नमक डाला जाता है। ना ही किसी डिश में बोर्डम डाली जा सकती है, ना लाफ्टर डाला जा सकता है, ना ही एम्बिशन डाली जा सकती है। द कंपनीज रैपिड ग्रोथ ओवर द पास्ट ईयर हैज़ बीन इम्प्रेसिव, ठीक है। अब देखिए, स्टेगनेंट, स्टेगनेंट आया हुआ है, डबल आया हुआ है। स्टेगनेंट होता है हिचकिचाना, ठीक है, पेनफुल भी नहीं आ सकता। रैपिड ग्रोथ आगे क्लियर है कि हैज़ बीन इम्प्रेसिव, तो रैपिड ग्रोथ ही आ सकता है। द चिल्ड्रंस जुबिलेंट लाफ्टर इकोड थ्रू द प्ले ग्राउंड, जुबिलेंट होता है एनर्जेटिक, जवानी में बच्चों की तरह जो होता है उसे जुबिलेंट कहते हैं, जोश से भरा। लेजी, एंग्री, क्रिस्पी, ये तीनों यहाँ पे नहीं आ रहे। हिज डिसीजन टू क्विट हिज जॉब सरप्राइज्ड एवरीवन। हिज इम्पल्सिव, ठीक है, इम्पल्सिव डिसीजन, अचानक से जो फैसला लिया जाए उसे। कोल्ड, क्वाइट, शाइनी, अब यहाँ ये तीनों नहीं आ सकते। द सेवरी अरोमा ऑफ द फ्रेशली बेक्ड ब्रेड फिल्ड द किचन। अब सेवरी अरोमा होता है खाने पीने की चीज़ों से जो खुशबू आती है उसे अरोमा कहते हैं, तो सेवर भी किचन से रिलेटेड होता है, तो इसलिए ना तो यहाँ ग्रम भी आता है, ना वोबली आता है, ना स्कॉर्चिंग आता है। तो गाइडेड राइटिंग है, यहाँ पे ब्रेन स्टॉर्मिंग है, ठीक है, ब्रेन स्टॉर्मिंग, ये सारी चीज़ें आपको टीचर पढ़ा देंगे, लेकिन ये मैंने लिखी है तो मैं आपको बता देता हूँ। मैं वीडियो ज़्यादा लेंथी नहीं करना चाहता, आप लोग उसको देख सकते हैं,
स्क्रीन को पास करके आप उसको देख सकते हैं। अब देखें ये ब्रेन स्टार्मिंग है, ठीक है, आइडियाज़ मैंने लिख दिए हैं, नेचुरल ब्यूटी, लश फॉरेस्ट, स्पार्कलिंग, ठीक है, ये सारे आइडियाज़ हैं और ये सब आइडियाज़ हैं, उनके नीचे हेडिंग्स लिखी हुई हैं, ठीक है। और इसी पे ही मैंने क्या कर दिया, माई ग्रीनर मदरलैंड पे मैंने ऐसे लिख दिया। ये मैं स्टॉप कर देता हूँ 5 सेकंड, इसको पास करके देख लें। तो इसके आगे वाला पेज ये हो गया, ठीक है। तो यहाँ तक ये ऐसे था। होपफुली आप लोगों के लिए ये वीडियो हेल्पफुल होगी। अगर हेल्पफुल हो तो कमेंट और शेयर करना मत भूलिए और अप्रिशिएट कर दिया करें, ताकि, और सबसे बड़ी चीज़ मैं वेलकम करता हूँ, क्योंकि मैं इन चीज़ों में एक्सपर्ट नहीं हूँ यूट्यूब वगैरह में। तो किसी को भी अगर कोई सजेशन हो तो वो काइंडली ज़रूर दिया करें, मैं सच्चे दिल से उसे एक्सेप्ट करूँगा। थैंक यू सो मच।